السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ عزیز، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اردو وتھ الطاف نوہر کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور آج ہم پڑھیں گے اسم کے بارے میں۔ اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کہتے ہیں جسے ہم ہندی کے اندر سنجا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک ڈائیگرام ہے، آپ دیکھ لیجئے، پھر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم بتائیں گے جلدی سے۔ سارا ڈائیگرام آپ دیکھ لیجئے۔ اب یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم پڑھیں گے اسم کی بناوٹ کے اعتبار سے تین قسمیں۔ کتنی قسمیں؟ تین قسمیں۔ سوال آتا ہے اسم ہے کیا؟ اسم ہے کیا؟ تو اسم کہتے ہیں، اوپر دیکھ سکتے ہیں یہاں، اسم وہ لفظ یا کلمات جو کسی شخص، جگہ، چیز یا کیفیت وغیرہ کے نام کو بتائے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کلمات جو کسی شخص، جگہ، چیز یا کیفیت کے نام کو بتائے۔ ہندی میں ہم کہہ سکتے ہیں اس کو سنجا۔ ہندی میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ سنجا کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے سنجا کسے کہتے ہیں؟ وہ چیز جو کسی ویکتی، وستو، ستان کا بودھ کرائے، جان کرائے، اسے سنجا کہتے ہیں۔ تو اس میں وہی ہے، پھر شخص، جگہ، چیز یا کیفیت، ٹھیک ہے۔ اب اسم کی کتنے اقسام ہیں؟ تو اسم کی تین قسمیں ہیں، اسم مصدر، اسم مشتق، اسم جامد۔ اسم مصدر کسے کہتے ہیں؟ اس سے دوسرے لفظ نکلتے ہیں، جیسے افعال وغیرہ اس سے بنتے ہیں، اسے کہتے ہیں اسم مصدر، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں، باقی اس میں ڈیٹیل سے، تفصیل سے جو بحث ہوگی نا، وہ فعل کی اقسام جب ہم کریں گے تب اس میں ہو جائے گی۔ اسم مصدر وہ اسم جو خود تو کسی لفظ سے نہ نکلا ہو، لیکن اس سے اور کلمے جیسے اسماء افعال نکلتے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ مصدر سے اسماء افعال نکلیں گے۔ مصدر میں فعل کا اظہار تو ہوتا ہے، مگر فعل کے لوازم اس مصدر میں نہیں پائے جاتے۔ مصدر کی علامت نہ ہوتی ہے۔ مصدر کی علامت کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہم کہیں رونا، ہنسنا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے چلنا، کھانا، یہ ساری مصدر کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ باقی اس سے تفصیلاً بات ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن امید ہے سمجھ گئے ہوں کہ جس سے دوسرے کلمے تو نکلتے ہوں لیکن وہ کسی سے نہ نکلتا ہو۔ جیسے مثال دے رکھی ہے، دوڑنا، لکھنا، پڑھنا وغیرہ۔ اسم مشتق دوسری قسم ہے، اسم مشتق وہ اسم جو کسی مصدر سے نکلا ہو، یا وہ اسم جس کا خروج کا معنی ہوتا ہے نکلنا، ٹھیک ہے۔ نکلنا، خروج کا معنی نکلنا، جس کا خروج کسی مصدر سے کسی قاعدے کے تحت ہوا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں اسم مشتق۔ جیسے کھانے والا، تیرنے والا، لکھائی، پڑھائی وغیرہ، یہ سارے اسم مشتق سے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کس سے نکلتے ہیں؟ یہ مصدر سے نکلتے ہیں۔ تیسری جو قسم ہے وہ ہے اسم جامد، وہ اسم جو نہ تو خود کسی لفظ سے نکلا ہو اور نہ کوئی دوسرا لفظ اس سے نکلا ہو، اسے کیا کہیں گے؟ اسے کہیں گے اسم جامد۔ کیا کہیں گے؟ جامد، ٹھیک ہے۔ جیسے لفظ دے، مثال دے رکھے یہاں، گھوڑا، آدمی، اسلام آباد، ٹھیک ہے۔ یہ وہ ہے جو کسی سے نہیں نکلے، نہ کسی سے نکلتے ہیں۔ اب
इसम जामिद की दो किस्में हैं। इसमें जामिद की कितनी किस्में हैं? याद रहे, पहले इसम की 3 किस्में हमने पढ़ी। नंबर 1 हमने पढ़ी इसम की किस्मों में, नंबर 1 हमने पढ़ी कौन सी? मस्दर, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 हमने पढ़ी मुश्तक। नंबर 3 हमने पढ़ी कौन सी? अभी भी ऊपर पढ़ के आए, ये नाम भी लिखा है जामिद, ठीक है ना। इसके आगे लगा देते हैं 3 कौन सी है? इसमें जामिद। अब इसमें जामिद की खुद 2 किस्में हो गई। कितनी किस्में? 2 हो गई। जामिद की तारीफ याद रखेंगे हम, वो लफ्ज जो ना तो खुद किसी से निकला हो और ना ही दूसरे लफ्ज उससे निकलते हो, उसकी 2 किस्में हैं। तो इसम की पहली जो किस्म है वो है इसमें खास। पहली कौन सी है? इसमें खास, इसमें आम। अब इनके एक नाम और है, जैसे इसमें आम का एक नाम है इसमें नकीरा, इसमें खास का एक नाम है इसमें मारिफा। बाज मरतबा इनसे सवाल क्यों पूछते हैं कि इसमें आम का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन दे देंगे तो क्या हो जाएगी? इसमें नकीरा। इसमें खास का दूसरा नाम क्या है? तो उसमें हो जाएगी इसमें मारिफा, ठीक है, याद रह जाएगा। आगे चलें। अब इसमें खास की तारीफ वैसे तो मैंने बता दी, खास चीज़ के लिए होता है। थोड़ी सी और देखते हैं, और आप इनको साथ साथ लिखते जाएंगे, साथ साथ क्या करते जाएंगे? लिखते जाएंगे। जैसे इसमें खास, वो लफ्ज़ या कलिमा जो किसी खास शख्स, खास जगह के लिए बोला जाए, उसे कहते हैं इसमें खास, ठीक है। इसमें चीज़ भी आ सकती है कि नाम को जाहिर करे, उसे इसमें खास या इसमें मारिफा कहते हैं। जैसे मसलन अलाउद्दीन खिलजी, बाबर बादशाह, लाल किला, ये इसमें खास हैं, ये हर एक के लिए नहीं बोले जाते। इसी तरीके से इसमें खास की कुल 6 किस्में, इसमें खास की कितनी किस्में? 6 किस्में हैं इसमें खास की। इसमें आलम, आलम कहते हैं नाम को, इसमें नाम आ जाएंगे। इसमें खिताब, खिताब वो होते हैं जो किसी हुकूमत की तरफ से या किसी इदारे की तरफ से दिए, नहीं, हाँ ठीक, इसमें जो किसी हुकूमत या इदारे की तरफ से दिए जाते हैं। लक़ब, लक़ब ये किसी काम की वजह से उनके, जो जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह है, ठीक है। इसी तरीके से शायर का इनकलाब शायर है, शायर इनकलाब। कुनियत, ये ख़ानदान वगैरह की निस्बत से नाम जो पड़ जाते हैं। उर्फियत, ये उर्फियत हम लाड प्यार के अंदर जिसके नाम, जैसे किसी गुड्डू वगैरह ऐसे नाम रख लेते हैं ना, वही है। इसमें तखल्लुस, तखल्लुस ये शोरा हजरात अपने असली नाम के अलावा एक नाम और रखते हैं जिसको तखल्लुस कहते हैं, और शायरी में या गज़ल नज़म में उन्हीं का जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें अलम। अलम की तारीफ क्या है? वो नाम, वो नाम जिससे किसी खास फर्द या जगह या चीज़ के नाम को बताया जाए, उसे कहते हैं अलम, ठीक है। जिससे किसी खास फर्द, खास जगह, खास चीज़ के नाम को बताया जाए, क्या कहते हैं? इसमें अलम। जैसे मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, ज़ैद, दहली, जयपुर, अलवर वगैरह, ठीक है। ये सारे खास जगहों के नाम हैं और ख़ास अशख़ास यानी शख्सों के नाम हैं। दूसरी जो किस्म है वो है इसमें खिताब। खिताब क्या होता है? वो नाम जो नुमाया खिदमत अंजाम देने के लिए हुकूमत से या किसी इदारे की तरफ से दिए जाए। जैसे मिसाल खान बहादुर, ये खान अब्दुल गफ़ार साहब का क्या है? ये खिताब है। शमसुल उलमा, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का खिताब है, ये हुकूमत की तरफ से मिला है, उस ज़माने की हुकूमत हुआ करती थी। तीसरा है इसमें लक़ब। तीसरा कौन सा है? इसमें लक़ब। वो क्या है? वो नाम जो किसी शख्स की खास खसूसियत की वजह से मशहूर और मारूफ हो। जैसे
गरीब नवाज का ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये गरीब नवाज उनका क्या है, लकब है। इसी तरीके से शायर इनकलाब, ये किसका लकब है, ये जोश मली आबादी का लकब है। ठीक है, जो किसी खसूसियत की वजह से मिलते हैं उसे कहते हैं लकब। चौथा जो है 4 नंबर, वो है कुनियत। 4 नंबर क्या है, इसमें कुनियत, वो नाम जो खानदानी, औलाद, वालिदैन या वतन की निस्बत से ताल्लुक़ की वजह से मशहूर और मारूफ हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कुनियत। जैसे इब्ने मरियम, ये क्या है, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कुनियत है। अबू हनीफा, ये क्या है, ये हज़रत इमाम नोमान अली रहमा की कुनियत है। अच्छा, एक सवाल मेरा आप हजरात से, अबुल कासिम, ये किसकी कुनियत है, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनियत है। ठीक है, पांचवा है इसमें उर्फ या उर्फियत, वो नाम जो किसी शख्स के असली नाम के अलावा लाड प्यार या मोहब्बत की वजह से मशहूर और मारूफ हो जाए, और ये नाम जो है या तो घर वाले रखते हैं, ध्यान रखना, या फिर कौन रखते हैं, या फिर दोस्त अहबाब रखते हैं। ठीक है, जैसे मिसालन गुड्डू, भोला, धोली, पप्पू। ठीक है, किसी का नाम लाला भी रख लेते हैं, प्यार से लाला। तो ये निक नेम जिसे अपने कहते हैं, तो उसी किस्म के नाम होते हैं। ठीक है, पांचवा है इसमें तखल्लुस, सॉरी पांचवा में छठा है इसमें तखल्लुस। और याद रहे ये क्या चल रही है, ये खास चल रहे हैं। ठीक है ना, इसमें खास चल रहे हैं। 6 नंबर कौन सा है, तखल्लुस। जैसे अक्सर शायरों का अपने असली नाम के अलावा एक और नाम होता है जिसे वो शायरी में इस्तेमाल करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं तखल्लुस। ठीक है, जैसे मिसाल, जैसे ज़ोक किसका तखल्लुस है, मोहम्मद इब्राहिम ज़ोक का तखल्लुस है। अनीस, मीर बब्बर अली अनीस का तखल्लुस है। गालिब, मिर्ज़ा गालिब का तखल्लुस है, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। आतिश किसका तखल्लुस है, ये ख्वाजा हैदर अली आतिश का तखल्लुस है, आतिश। ठीक है, तो ये 6 किस्में हो गई किसकी, इसमें मारिफा की। अब आपसे एक मरतबा और इसको बता देते हैं, इसमें खास की है, सॉरी, और इसमें खास का दूसरा नाम आपको बता ही है क्या है। तो सबसे पहली किस्म हमने पढ़ी, दूसरी पढ़ी, तीसरी पढ़ी, चौथी, पांचवी और छठी। ठीक है, तो आप स्किप करके इसको देख सकते हैं, और एक कागज़ लेकर उसमें जो है, जैसे मैंने यहाँ नंबर डाले हैं, वैसे नंबर डाल के उन सबको बगैर देखे लिखने की कोशिश करें। ठीक है, हम अगर सारी चीज़ इसमें बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। दूसरी किस्म है इसमें आम, ये दूसरी किस्म है। अब किसी के इसके अंदर भी कितनी किस्में हैं, कुल 5 किस्में हैं। नाम से पता चल रहा है आम, यानी इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर आम नाम होंगे। जैसे इसमें ज़ात, इसमें जमा, इसमें मादा, इसमें कैफियत, इसमें ज़र्फ। ठीक है, इसमें ज़ात किसे कहते हैं, वही समझो किसी के मुकम्मल ज़ात का इल्म हो। ठीक है, नंबर 1 इसमें ज़ात, वो इसम जो किसी के मुकम्मल ज़ात का इल्म कराए। जैसे औरत, लफ्ज़ औरत एक इसम है, औरत का नाम लेते ही इसमें सारी औरतें दाखिल हो जाएगी, ये आम लफ्ज़ है। इसी तरीके से लफ्ज़ मर्द, ये भी आम लफ्ज़ है, और मर्द का नाम लेते ही पूरी मर्द ज़ाती इसके अंदर आ जाएगी। इसी तरीके से दूसरी जो किस्म है वो इसमें जमा, दूसरी कौन सी है, इसमें जमा है। अब उसकी तारीफ देखते हैं, वो इस्म जो बज़ाहिर लफ्ज़न तो एक मालूम हो मगर हकीकत में वो कई इस्मों का मजमुआ हो। जमा बोलते हैं कई चीज़ों के मजमुए को। इसमें जमा फिर किसे कहेंगे, जो ज़ाहिर में तो एक मालूम हो
لیکن وہ اپنے اندر کئی اسموں کو لیے ہوئے ہے. مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی. جیسے جماعت، اب لفظ تو ایک ہی جماعت، لیکن اس کے اندر کئی فرد ہوتے ہیں. فوج، فوج کے اندر بھی کئی لوگ ہزاروں لوگ ہوتے ہیں. اسی طریقے لشکر کے اندر بھی کئی لوگ ہوتے ہیں. سماج کے اندر بھی بہت سارے. لفظ سماج کہنے سے بہت سارے لوگوں کے اوپر یہ صادق آتا ہے. تو امید ہے اس میں جمع سمجھ گئے ہوں گے. تیسرا اس میں مادہ، نام سے پتہ چلا اس میں نمبر 3 ہے اس میں مادہ. وہ اس میں مادہ اس میں مادہ ان چیزوں کے نام کو کہتے ہیں جن سے ہم کوئی دوسری چیز بناتے ہیں. یاد رہے کہ یہ کبھی کبھی جمع میں بھی استعمال ہوتے ہیں. اس میں مادہ کسے کہتے ہیں؟ اس میں مادہ جس سے ہم دوسری چیزیں بنا سکتے ہیں. بعض مرتبہ جمع کے اندر بھی داخل ہو جاتا ہے. جیسے دھات ہے. جتنے بھی دھات ہیں سب اس میں مادہ کے اندر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مٹیریل ناؤنس جسے کہتے ہیں انگلش میں. دھات بھی کس میں آتے ہیں؟ اس میں مادہ کے اندر. جیسے لوہا، سونا، چاندی وغیرہ. دوسرا وہ چیزیں جن کی ناپ تول اور ڈھیر کی شکل ہو، یا تو ڈھیر کی شکل ہو یا ناپ تول ہو، وہ بھی کس میں آ جائیں گے؟ وہ بھی اس میں مادی میں آ جائیں گے، اس میں مادہ میں آ جائیں گے. جیسے چینی، دودھ، چائے، گندم، شکر، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی. اسی طرح کبھی تیار کی جانے والی اور قدرتی کرشمہ سے متعلق اشیاء بھی اس میں مادہ میں شمار کی جاتی ہے. جیسے پتھر، ریت، ٹھیک ہے، بجری، سیمنٹ اور بارش، شبنم وغیرہ، یہ بھی اس میں مادہ میں کبھی کبھی اس کو داخل کر لیتے ہیں. اس میں عام چل رہے ہیں بھائی، دھیان رکھنا. اس میں عام. تیسری ہوگی. چوتھی قسم ہے اس میں کیفیت. وہ لفظ یا کلمہ جس سے کسی حالت یا کیفیت کا علم ہو اسے اس میں کیفیت کہتے ہیں. اس میں کیفیت کی 2 قسمیں. کتنی قسمیں؟ 2 قسمیں. اس میں کیفیت داخلی اور اس میں کیفیت خارجی. داخلی کون سی ہوگی؟ دیکھتے ہیں. نمبر 1 وہ اس میں کیفیت جو باطنی یعنی اندرونی حالت و کیفیت کا علم کرائے. اس میں کیفیت باطنی جو باطنی حالت کا علم کرائے، اندرونی حالت کا علم کرائے. جیسے خوشی، غمی، حیرت، استجاب. یہ کون سی ہو جائے گی؟ یہ ہو جائے گی اس میں باطنی. ٹھیک ہے، تو کس سے باطن کا علم ہو رہا ہے. خارجی کون سی ہو جائے گی؟ اس میں خارجی جو ظاہر سی بات ہے خارجی چیزوں کا علم کرائے. وہ اس میں کیفیت جو خارجی حالات و کیفیت کو ظاہر کرے. جیسے دھوپ، روشنی، اندھیرا، سردی. یہ خارجی کیفیت ہے، یہ باہر سے دیکھنے سے ہی پتہ چل جاتا ہے. تو اس میں کیفیت کی 2 قسمیں ہوگی، داخلی اور خارجی. ٹھیک ہے. آگے چلتے ہیں. اس میں ظرف کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ظرف کے اندر زمان اور مکان دونوں اس میں ظرف کے اندر آتے ہیں. یا تو زمانہ بتائے، مکانہ جگہ بتائے، یا پھر وقت بتائے. جیسے وہ لفظ یا کلمہ جو کسی جگہ یا وقت کے نام کو ظاہر کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں ظرف کہتے ہیں. اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں بھائی. اس میں ظرف کی ایک ہے زمہ، دوسری ہے مکان. اس میں زمہ کون سی ہو جائے گی؟ نمبر 1 اس میں زمہ. وہ لفظ یا کلمہ جس سے کسی وقت یا زمانے کا علم ہو، کسی وقت کا علم ہو یا پھر زمانے کا علم ہو، وہ ہو جائے گی زمان کے اندر. جیسے دوپہر، شام، صبح، رات. یہ ساری کیا ہو جائے گی؟ اس میں ظرف کے اندر آ جائے گی. اور اس میں ظرف مکان کے اندر.
दूसरी है, सॉरी इसमें ज़र्फ जमा के अंदर आ जाएगी, इसमें ज़र्फ दूसरी है अपनी, इसमें ज़र्फ मका, वो लफ्ज़ या कलिमा जो जिससे किसी जगह का इल्म हो, यहाँ जिस कर लेना हो, ठीक है, जिससे किसी जगह का इल्म हो, जैसे मदरसा किस जगह का नाम है, मकतब किसी जगह का, कुतुब खाना किसी जगह का नाम है। तो इसमें क्या आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, इसमें ये आ जाएंगे इसमें मकान के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। दिगर अस्मा, अब दो अस्मा और हैं दिगर के अंदर। एक तो है इसमें सौत, कौन सी है, इसमें सौत है, वो लफ्ज जो किसी जानदार या बेजान अशिया की मखसूस आवाज़ों को जाहिर करे, जैसे गुटरगू, मियाऊ मियाऊ। ठीक है, तो ये इसमें सौत हो जाएगी जो किसी जानदार या बेजान की क्या करें, आवाज़ों को जाहिर करे। दूसरी है इसमें आला, दूसरी क्या है, इसमें आला, वो लफ्ज़ है जिससे किसी हथियार या आला का इल्म हो, या तो हथियार का इल्म हो या किसी आले का इल्म हो, किस में आ जाएगी, इसमें आला के अंदर आ जाएगी। इसमें आला में हथियार वगैरह ही होंगे। ठीक है, हथियारों के अपने उर्फ आम में आला बोलते हैं, जैसे तलवार, छुरी, भाला और दुनिया के सभी हथियार इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब इसमें मुश्तक आ गई, इसमें मुश्तक की थोड़ी सी मिसालें देखेंगे, फिर उसकी अक़साम देखेंगे। इसमें मुश्तक वो इस्म जो किसी मस्दर से बना हो, या वो इस्म जिसका खुरूज किसी मस्दर से किसी कायदे के तहत हुआ हो। जाहिर सी बात है, यूँ समझ ले मोटा मोटी आप कि ये जो है इसमें मुश्तक ये किसी न किसी मस्दर से बनेगा। किससे बनेगा, मस्दर से बनेगा। जैसे जैसे थकन, लड़ता हुआ, गिरता पड़ता, ये सारे के सारे इसमें मुश्तक में आ जाएंगे। अब इसमें मुश्तक की कितनी किस्में हैं, तो इसमें मुश्तक की है 5 किस्में हैं। इसमें मुश्तक की कितनी किस्में, 5 किस्में हैं। और एक मरतबा ये देख लेते हैं इसमें मुश्तक थोड़ा सा, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह इसमें मुश्तक है, ये हम दूसरी वीडियो के अंदर जो है वो डाल देंगे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।